नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। तो दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाला हूं विद कैप्टन अमरजीत कुमार। दिस स्पेशल प्रोग्राम रेफर्स टू अ वेटरन्स विश to go back to war as his country calls. This special program is related to the fact that even if a soldier is out of combat, is living a very good retired life, you can never take war and the will to serve his motherland out from him. Today हम बात करने वाले हैं with Captain Amarjit Kumar regarding his wish to re-enlist in the Indian Armed Forces to fight back the Pakistani military against what the Pakistani military in the border areas. He is 75 years of age and he had served in the 14th Punjab Regiment Nabha Akal during the Bangladesh Liberation War of 1971. He has also taken part in the Battle of Garibpur, the infamous Battle of Garibpur, जहां पे 14 Punjab with Charlie Squadron of the 45 Cavalry Regiment, पाकिस्तानी फौज के 107 Infantry Brigade और 3rd Independent Armored Squadron को धूल चटाया था जंग में। आज हम ऐसे एक वेटरन के साथ बात करेंगे उनके जज्बे के बारे में। Let's welcome Captain Amarjit Kumar to our program today. First of all, sir, welcome to my program. Today we are going to talk specifically about you and your enthusiasm to join back into the forces. Before I would like to, start about this entire thing, I would like to know about how and why and when actually, because you're, sir, from the old generation of the armed forces. So I would like to know, when did you actually join the army and how? Thanks. It was in 1968. I didn't pass my graduation even. Then I was selected to join 8th Short Service Mission. Okay. So I joined in 69 OTA Madras, and then I was commissioned on 15 March 1970 into 14 Punjab of Nabakal. Acha, and this was in which company, sir? This was my, to start with, I was with the Bravo company. Okay. Then after that, I was in Charlie company. Acha. We were posted at Ranchi. Ranchi. And sir, any motivation for the reason why you wanted to join the armed forces? This is the thing, my elder brothers, my wife's, my sister's husband, they were in army. I got inspiration. And secondly, this is from within the heart. The feeling you can't even, express in, speaking, या बोल नहीं सकते हम, मगर वो जज्बा होता है एक। इसलिए होता है कि मैंने लड़ाई में देखा था कि लड़ाई के दूसरे दिन ही कैजुअलिटी इतनी हो गई थी कि हमें रिजर्व की जरूरत पड़ गई थी। और जो रिजर्व थे, कोई मतलब के जवान ही आए थे, कोई ड्राइवर था, कोई कुछ था, उनके आने से हमारा इतना हौसला बढ़ गया कि हमें लगा कि अब हमें कोई फिक्र नहीं है। इसी तरह जब अब लड़ाई होगी, आप देख लीजिए कि पहले दिन ही कैजुअलिटी बहुत होगी और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सीधे आदमी आप लेकर भेज दो, क्योंकि रिक्रूटमेंट सेक्टर में तो वो राजवान होते, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती। वेटरन्स आर द ओनली सोर्स विच कैन कम फॉरवर्ड। तो इसीलिए मैंने 8th कोर्स के तकरीबन मेरे 325 कोर्स मेट हैं, जिन्होंने सबने ऑफर कर दिया कि हम जाने को तैयार हैं। तो इसलिए मैंने एक चिट्ठी लिखी थी 27 मई को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को कि हम आने के लिए तैयार हैं, बिना किसी पैसे से, बिना किसी न्यूमरेशन से और बिना किसी कंपनसेशन से। इवन इफ वी गेट कैजुअलिटी भी हो जाए तो हम कोई, या हमारी फैमिली कोई क्लेम नहीं करेगी गवर्नमेंट सरकार से। ये एक जज्बा है, क्योंकि ये जज्बे की कोई कीमत नहीं है, और देश की हो तो हम दे ही नहीं सकते जितना हमें उन्होंने दिया है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा जानने से पहले हम थोड़ा आपके एक्सपीरियंस इन वॉर के बारे में जानेंगे। तो इन शॉर्ट, इफ यू कुड टॉक अबाउट योर बटालियन, स्पेशली 14 पंजाब नभा अकाल इन द बैटल ऑफ गरीबपुर, उसके बाद विटनेसिंग द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एट खुलना। मेरे, as far as I know, sir,
आप और आपके बटालियन were there very much in the Bangladesh Liberation War fighting Pakistani forces. So in short, if Yes. you could talk about that part, sir. हाँ, हमें रांची को वेस्ट बंगाल में नक्सलाइट की प्रॉब्लम चल गई थी, हमें A2 सिविल पावर के लिए भेजा गया था। Okay. और उस ऑपरेशन का नाम था हॉट स्पॉट। नक्सलाइट प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, उसके बाद ही मार्च अप्रैल में रिफ्यूजी प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमें मूव करके हमारी बटालियन को नोडिया में कृष्णगंज जगह है, वहां पर पहुंच गए थे हम। अच्छा अच्छा, कृष्णागंज। तो कृष्णागंज से आगे कृष्णनगर, कृष्णानगर, कृष्णगंज कहते हैं मगर कृष्णानगर है वो नोडिया में। तो मेरी कंपनी, मेरे ब्रेवो थी तब, मेजर माचिया मेरे कंपनी कमांडर थे। हमें बटालियन से आगे गेडे एक जगह है जहां पर हिंदुस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन है, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान चालू हो जाता है। तो हमें वहां पर तैनात कर दिया गया कि अगर कोई उधर से मूवमेंट होगी तो हमें पहले पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम मुक्ति बाहिनी के साथ भी ऑपरेशन करते रहे, मगर फिर वो बात नहीं बनी। जनरल रोड़ा हमारे पंजाब रेजिमेंट के कर्नल रेजिमेंट थे और वो ईस्ट आर्मी कमांडर भी थे। उन्होंने ये दिया कि आप अब अंदर जाओ, उसके बिना बात बनेगी। तो 20 नवंबर को बायरा से हम अंदर गए, कोई 10 किलोमीटर, वहां पर एक गरीबपुर जगह है। और मेरे साथ मैं बता दूं कि मुक्ति बाहिनी की एक सेक्शन भी थी, मतलब कंपनी स्टैंड गरीबपुर में। हमें ये ऑर्डर मिला, जैसे लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि हमें वहां से तकरीबन किलोमीटर आगे स्क्रीन पोजीशन पर चौगाचा वो सड़क थी, वहां पर हमें लगाने को बोला, ट्राई जंक्शन पर। हमारी कंपनी थी, अल्फा कंपनी के कुछ एलिमेंट थे। कंपनी कमांडर हमारे मेजर NGS बैंस थे और मेरे ही साथ अल्फा कंपनी के कैप्टन PK चौधरी थे, जो कि बाद में ब्रिगेडियर बने। रात को हम देखते रहे कि वहां से टैंक आकर लग रहे हैं पाकिस्तान के, हमारे टैंक तो खड़े थे। हमने लगा कि सुबह कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है। सुबह अगले दिन हम स्टैंड डाउन करके चाय पी रहे थे, आगे से या अली करके हमारे वो खाकी वर्दी वाले ने हमें अटैक कर दिया। हम एक साइड में चले आए, क्योंकि वहां उनके टैंक मूव कर रहे थे। हम गांव के साइड में आना चाहते थे, टैंकों को टाइम लगे। ये खुले की लड़ाई थी। दूसरी तरफ 6 पंजाब थी पाकिस्तान की, और गाड़ी से जिसके पास था वेपन वो चला रहा था। मेरे पास 2 इंच मोटर थे, मैंने 2 इंच के मोटर के गोले फेंके जो कि उनके ऊपर लगे। तो हमारे पास लड़ाई में भी वो नहीं देखा जाता, हमारे को एक बैरल सेट दिया था जो चल नहीं रहा था। तो मैंने मिट्टी हाथ में लेकर भगवान को याद किया कि हम हमारी मदद करिए। तो उसके बाद मैंने जो उसका सेट का हैंडसेट दबाया तो वो चलने लग गया, और चलने में लग गया। उसकी फ्रीक्वेंसी बैटरी कमांडर से मिली थी, हमारी सी फील्ड की, आज तोपखाने से। तो उन्होंने फायर लाया और फायर आया, और फिर वो दौड़ने को उनको जगह नहीं मिली। उनके 20-25 आदमी ने सरेंडर कर दिया, तकरीबन 100 आदमी मारे गए। 2 टैंक वो स्टार्ट ही छोड़कर चले गए। तो ये और ये 21 नवंबर की लड़ाई को बांग्लादेश में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। 21 नवंबर को अपना वो आर्मड फोर्सेस डे मनाते हैं। और आपको सर, आई थिंक आपके बटालियन को भी महावीर चक्र मिला। मेरे बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे सीओ को महावीर चक्र मिला, एक मेरे JCO को मलकीत सिंह साहब को, और वो पोस्ट थॉमस उनको महावीर चक्र मिला। और इस लड़ाई में 45 कैब के स्क्वाड्रन कमांडर मेजर DS नारंग थे। वो इतनी बहादुरी से लड़े, मैं तो उनको उस लड़ाई का ना अर्जुन कहता हूँ। उन्होंने 4 टैंक तोड़कर कपोला को बंद नहीं किया, खुले कपोले से लड़े, और एक गोली उनके माथे पर लग गई, वो शहीद हो गई। और भी वीर चक्र, एक हमारा RCL का डिटैचमेंट का हौलदार था, उसने पाकिस्तान का पहला टैंक तोड़ा और उसको भी वीर चक्र मिला। नाउ कमिंग टू खुलना सर, आप खुलना में आपका बटालियन कैसा फाइट किया टिल द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी देयर सर? हम उसके बाद जसूर उनका खाली हो गया था। 5 बलोच की पूरी रेजिमेंट की खाली हो गई थी। हम उनकी बैरकों में 2-4 दिन रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि खुलना ढाका में सरेंडर 16 को हो गया, मगर खुलना में किसी ने पता नहीं क्या उनके दिमाग में, वहां उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो दोपहर की लड़ाई थी ये, तब वो लड़ाई में थोड़ी लड़ाई लड़ी, हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्होंने फिर सफेद झंडे दिखाकर सरेंडर कर दिया। अगले दिन सुबह ब्रिगेडियर हयात खान के साथ तकरीबन 1600-1700 आदमी थे, उनके अफसर थे।
उन्होंने हमारे सामने सरेंडर किया, कर अपनी बेल्टें उतारी, अपने रैंक उतारे और अपने बेल्ट देकर, अपने वेपन देकर सरेंडर किया था। ये एक मेरे को कभी ना भूलने वाली और ऐसी कभी ना देखने वाली घटना है जो मेरे को मिलती है। राइट। उसके बाद सर जंग खत्म हो गया और आप कितने और साल फौज में काम किए सर? मैं उधर से अगर लड़ाई खत्म हो गई तो हम बैनापोल पेट्रापोल से कलकत्ता होकर सीधे रांची चले गए। अच्छा। और रांची में पहुंचकर तब लड़ाई पूरी बंद नहीं थी, हमें ईस्टर्न सेक्टर में भेजा गया, हमें मलोट पंजाब में लगे गए। तो उसके बाद हम मलोट में रहे, तकरीबन वहां पर भी हमारा एरिया राजस्थान में था, ऑपरेशन एरिया नूरपुर। तब वहां पर पाकिस्तान ने कोई जरूरत नहीं की हमारे पर कोई हमला कर दें। उसके बाद हम वहां से अम्बाला आ गए, अम्बाला से पलटन मूव कर रूपा आगे आ गई। वहां से मेरी पोस्टिंग 21 पंजाब में हो गई, जो फिरोजपुर में मेरे घर के पास थी। अच्छा। फिरोजपुर में मैं 2 साल के बाद 1978 में मैं फौज से रिलीज हो गया था, मेरी डिसेबिलिटी थी। फिर मैं 2 साल अपनी खेती कराई। हाँ जी। अच्छा, उस टाइम तक सर आप कैप्टन रैंक पे थे? मैं जब रिलीज हुआ तो कैप्टन में अम्बाला में बन गया था। उसके बाद मैं कैप्टन ही रिटायर हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद के लाइफ के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं इन शॉर्ट? हाँ, जब मैं रिटायर हुआ तो मेरा फार्म है बठिंडा के नजदीक गांव में, मैं 2 साल खेती कराई। अच्छा। उसके बाद मेरे को यूपीएससी में स्पॉन्सर किया गया, मैनेजर फिल्म डिवीजन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। अच्छा। मेरी सिलेक्शन तीनों जगह हो गई थी और मैंने किया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में मैं रहा। मेरे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी स्पॉन्सर किया गया, तो मैं बॉम्बे जाकर वहां पर ज्वाइन किया एज ए सिक्योरिटी अफसर। लेटर ऑन मैं स्विच ओवर करके जनरल बैंकिंग में बना और 2006 में मैं चंडीगढ़ से रिटायर हो गया। अच्छा, तो उसके बाद सर आप आई थिंक यू आर वर्किंग एज अ साइकोथेरेपिस्ट एंड आल्सो एज आई वुड से समबडी हु इज गोइंग फॉर ग्रीन इनिशिएटिव। हाँ, मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट। हमारी एनजीओ है सुरक्षा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट। और अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी लोग, क्योंकि हमारी 90% बीमारियां दिमाग की हैं, अगर दिमाग वो ठीक हो जाए तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी होती है, नेगेटिव एनर्जी निकाल दो तो आदमी ठीक ठाक हो जाता है। और मैं कोई हजारों आदमी ठीक किए हैं हर। एंड उसके बाद सर आप तो बांग्लादेश भी गए थे ऑन ऑफिशियल। हाँ, ये 2023 में मेरे याद है कि हमें उन्होंने बुलाया था। और मैं बता दूं, मेरे को लोग इतने मतलब के इज्जत दी उन्होंने। जब वापस आने लगे तो मैं फ्रिस्किंग के लिए ढाका एयरपोर्ट पर उस पर डेस्क पर चढ़ गया। तो वहाँ का जो मेरे ख्याल के पुलिस का कोई इंस्पेक्टर या क्या था, स्टार वाला, तो मेरे को बोला कि साहब आप इधर नीचे आ जाओ। मैंने बोला भी क्या बात है? कहता साहब हम आपको फ्रिस्क कैसे कर सकते हैं? अरे आपने तो हमारी जान बचाई है, हमारे लोगों की जान बचाई है अपनी जान देकर। तो आज मैं इतना लकी हूँ कि मैं आपको मिल रहा हूँ, मेरे से आप जफ्फी डाल लो। और उसके बाद 54 इयर्स के बाद सर आप फिर से जंग में जाने के लिए आई थिंक यू हैव अप्लाइड एंड आल्सो रिटन अ लेटर टू द आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी, राइट सर? हाँ, जब मैंने देखा कि मुझे पता था कि लड़ाई में कैजुअलिटी होंगी, और चाहे हम एक्चुअली 70 साल के भी 75 साल के हो गए, मगर फौज में लड़ाई के लिए जज्बा होता है, एज कोई नहीं होती। आपको मैं थोड़ा बता दूं, गुरु गोविंद सिंह साहब जी के जो बाबा दीप सिंह जी थे, वो बूढ़े थे, बूढ़ा दल के थे वो, और सबसे जो जबरदस्त मतलब के जनरल थे, फाइटर थे। तो फाइटिंग के लिए जज्बा चाहिए, उम्र कोई नहीं होती। अब उम्र की कोई सीमा नहीं है। जैसे पॉलिटिशियन, हमारे प्रधानमंत्री चाहे 75 साल के हो गए हैं, मगर वो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे यंग से भी ज्यादा करते हैं। तो एज इसमें कोई फर्क नहीं, जज्बा होना चाहिए। जज्बा मेरे में नहीं है, मैंने तो एक्सप्रेस कर दिया जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब को चिट्ठी लिखकर उनकी, और मैं मानता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये चिट्ठी उन्होंने सब जगह पहुंचा दी। और मेरे को 3-4 टीवी चैनल आ गए, और इंडियन एक्सप्रेस श्रीनगर से भी आ गई है। और मेरी एक यही है कि हम जाकर कुछ आदमी उनको बोले कि साहब हम आपके साथ हैं, जाने के लिए तैयार हैं, कोई पैसा नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। ये हमारी एक तमन्ना है कि मेरे 4-5 कोर्स मेट लेकर जो जाने वाले हैं, जाकर उनसे मिलें और उनको कहें कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। और मैं चाहता हूं कि ये स्टोरी वहां पर लिख कर दी जाए, फोटो लगाई जाए,
ताकि जो यूथ को इंस्पायर करें फौज जाने के लिए, ये बातें हैं। अभी मैं थोड़ा सर आपके कोर्समेट्स के बारे में जानना चाहूंगा। आपके जो आई थिंक शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्समेट्स थे हु आल्सो फॉट इन 71, उनमें से कितने अभी जिंदा है सर, एंड हाउ मेनी हैव पास? मैं बता दूं 425-26 हम कोर्समेट जिन्होंने पासिंग आउट की थी, कमीशन मिला था। और 71 की लड़ाई में पहला महावीर चक्र हमारे लेफ्टिनेंट शमशेर सामरा को मिला था मरणोपरांत ही। हिली की लड़ाई में उनको वहां से मिला था। और हवा से हमारे कोई 15 हैं जिनको वीर चक्र मिला। हमारी कोर्स में 2 लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं, एक जनरल चोपड़ा हुए, विनोद चोपड़ा, जो कि प्रेसिडेंट के AMLs भी थे, और दूसरे जनरल जसबीर ढिल्लो हैं जो EME के थे, वो भी बड़े एक्टिव हैं सारे। और मेरे इधर कर्नल गुरजीत बाजवा है जिनको वीर चक्र और सेना मेडल मिला, और उन्होंने लड़ाई में एविएशन कोर के थे, बड़ा अच्छा काम किया। सारे ही हमारे साउथ में बैठे हैं। चित्रापू है, विद्या चित्रापू मेजर, वो अब भी दौड़ लगाते हैं, यंग लोगों से भी आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे आदमी हमारे बहुत बड़े हैं, जो एक आदमी कोई 50 के बराबर होगा। वंडरफुल वंडरफुल। मेरी पलटन के हम मिलते हैं एक बार गरीबपुर की लड़ाई में, जिन्होंने हिस्सा लिया था जलंधर में 21 नवंबर। तो वहां पर हमारे जितने भी वहां पर बड़े अच्छे, मेरा एक सूबेदार मेजर है जो मेरी प्लेटून में नायक होया करता था, वो सूबेदार मेजर प्रगट सिंह है। तो वो उधर से ही रिटायर हुए हैं। उधर सूबेदार एक हैं अपने गिल हैं, कुलवंत सिंह गिल। तो उनको बता दो वो सारे के सारे आने को तैयार हैं, और पूरे दर्जे के इंस्ट्रक्टर हैं, और अल्फा ग्रेड रिजल्ट में दिया हुआ है। ओके, तो आपका ये जज्बा, आई थिंक सर, आई होप दैट देश, आई मीन द कंट्री एक्नॉलेजेस, एंड देश को एक मोरल बूस्ट मिले कि अगर दुश्मन का कोई हरकत होता है। आपने देख लिया पाकिस्तान में धने लोग हैं जो मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं लड़ाई लगी तो हम अमेरिका चले जाएंगे। उनके अफसर जवान के ने रिजाइन कर दिया, तकरीबन पता चला कि 500-400 आदमी रिजाइन कर दिया लड़ाई से डरते। और हमारा ये है कि हम 75 साल के हो गए ही जाने को तैयार हैं। तो अगर ऐसे जज्बात है तो हमें कौन हरा सकेगा दुनिया में? मेरे को नहीं लगता। फौज ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है, कल जो है उन्होंने टारगेट किया है, और वी स्टैंड बाय। कोई भी इवेंचुअलिटी होने के लिए हम पूरे तैयार हैं जी, हमने तैयार कर दिया है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। आई होप आपका ये जोश आपको आपके साथ और भी दिन तक रहे, एंड आई होप दिस जोश आल्सो स्प्रेड्स इन द एंटायर कंट्री सर। मैं एक आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा कि लड़ाई में डेकोरेशन मिलती है, वीर चक्र, महावीर चक्र, जो जिंदा होते हैं, जो एक दो मर जाते हैं, जो उनको बहुत, मगर जो जवान मर गया है लड़ाई में उसे कुछ नहीं मिलता। उसके लिए कुछ जान देने से ज्यादा क्या बहादुरी दिखा सकेगा कोई? वो बेचारे, उनको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे हमें लड़ाई का मेडल मिलता है, उनको वही मिलता है। मैं चाहूंगा कि अगर ये कर दें तो इट विल इंस्पायर पीपल, बहुत दुनिया आगे आएगी। और ये फर्ज भी बनता है, जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी उसको कुछ ना कुछ सरकार को उसको गैलेंट्री अवार्ड देना चाहिए, जो भी। ओके, राइट सर। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर आपका जज्बा हमारे साथ शेयर करने के लिए। Dev, I am grateful to you. You gave me this opportunity to address people, address nation if it goes, and with a humble request कि जो भी, जरूरी नहीं है कि मैं फौजी हूँ, मेरे को वेटरन में जाना चाहिए। जिसमें जज्बा है वो फौज में जाना चाहिए। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ रखते हैं, इमटीरियल। और अब हमारा टाइम आ गया कि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हिंदुस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि अब हम चारों तरफ से गिर गए हैं, जैसे इजराइल ने किया। चाइना विल नेवर अलाउ अस टू लिव इन पीस। तो एक अगर पता चल जाए कि 140 देशवासी मिलिट्री ट्रेनिंग लिए तैयार है, तो कोई हमारी तरफ देख भी नहीं सकेगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे। वंडरफुल सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच देव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आई सल्यूट यू। जय हिंद की सेना। जय हिंद सर, जय हिंद की सेना।